Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video we are going to see diameter and height of a binary tree, like how you can calculate diameter and height of a binary tree. Because this is just another video of our playlist OA problem set, okay, in which we are showing different problems that can be asked in your interviews or that can come in your online assessments of different companies, okay. But before starting this video, let's just see what is Newton School. So as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program for you is pay after placement program, under which what they do is they will teach you for 6 months, they will make you a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in different companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's and Academy, which they have tie-up with, okay. So the most amazing thing about this program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies for a minimum of 5 lakh CTC, okay. Second program they have for you is Launchpad initiative. Like if you want to start learning for free, you can just come to newtonschool.co, log in or sign up and start learning for free. They have different courses for you. You can just opt any course and start learning. After completion of any course, you will also get certificates via Newton School, and you can also do you can also use Newton School IDE for coding purposes, and you can also do quizzes there, and there are different coding contests hosted for you in Newton School. You can also participate in those coding contests, okay. So if you haven't checked newtonschool.co yet, just come to their website, pay after placement program, and check their Launchpad initiative and get the most out of it. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel, where we have different playlists for you related to companies, placements and hirings, related to online assessments, problem sets, related to dynamic programming, data structure and algorithms, programming language and JavaScript projects and JavaScript, okay. You can just come and you subscribe this YouTube channel where we are uploading videos every day regularly. So let's just come to today's video, that is diameter and height of a binary tree. We will firstly see what is exactly diameter and height of a binary tree, and then we will see how we are going to calculate it, okay. Fine. Suppose this is your problem statement. Given the root of a binary tree, return the length of the diameter of the tree, okay. The diameter of the binary tree is the length of longest path between any two nodes in a tree. This path may or may not pass through the root. The length of a path between two nodes is represented by the number of edges between them, okay. So I hope इतनी definition से intuition मिल गया होगा. What is, suppose this is your binary tree, okay. Firstly, what is a binary tree? In which each nodes can have at most 2 children, okay, and at most 2 children हो सकते हैं. They can be 0 or 1 and at most 2. 2 से ज़्यादा children किसी भी नोड के नहीं होंगे, ठीक है. ये तुम्हारा बाइनरी ट्री होता है. सपोज दिस इज योर बाइनरी ट्री. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डायमीटर. तो डायमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन दिस बाइनरी ट्री, ओके. सपोज आई से दैट डायमीटर ऑफ दिस बाइनरी ट्री इज 4, देन आई विल टेल यू दैट between these two nodes you can travel 4 edges. That's why this is the diameter of binary tree. The length of path between two nodes is represented by number of edges between them, okay. तो इन दोनों नोड्स के बीच में जो लेंथ ऑफ पाथ है वो कितनी होगी? नंबर ऑफ एजेस, दैट इज 4, ओके. एंड दैट्स व्हाई डायमीटर ऑफ दिस बाइनरी ट्री इज 4, okay. So firstly in this problem we will talk about diameter, and during calculation of diameter we will also talk about height of binary tree, okay. So that's why I gave this problem as the title, that we are going to calculate diameter and height of binary tree, because during calculation of diameter we will also calculate height of binary tree, okay. So now I'm going to show you a example in which you will get to know more, ज़्यादा intuitive हो जाएगा that how you can calculate diameter of binary tree, okay. Suppose this is your binary tree 1 2 3 4 5. These are nodes name, okay, and you have the reference of this node, okay. रेफरेंस मीन्स तुम्हें इस नोड का एड्रेस और इस नोड का पॉइंटर पता है, ओके. हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री? अब नाउ यू नो दैट करेंटली जो तुम्हारा आंसर है दैट इज बिटवीन 4 and 3 एंड इक्वल्स टू 3 है वो, ठीक है. आउटपुट में तुम्हें नीचे आंसर 3 दिख रहा होगा. अब तुम कैसे चेक करोगे? राइट नाउ करेंटली यू आर एट दिस नोड, ठीक है. अब तुम्हारी इस नोड पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है.
अगर मैं बोलूं कि तुम्हें किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, सो हाउ आर यू गोइंग टू, फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच दैट विल कम इन योर माइंड विल बी, आई विल कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एवरी टू नोड्स एंड जो भी मैक्सिमम होगी हम वो वाली डन कर देंगे। ओके, सो थोड़ा सा उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इससे तुम्हें पता चला कि कहीं ना कहीं तुम्हें रिकर्जन, एवरी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, दैट्स वाई यू आर गोइंग टू यूज रिकर्जन। ठीक है, तो अब सारे नोड्स के बीच में तो तुम कर नहीं सकते बिकॉज टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n, फिर दो दो के पेयर बनाओगे तो n से 2, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी दिस मच। ठीक है, बट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ दिस बाइनरी ट्री इन लीनियर टाइम। ओके, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, लेट्स सी। अब तुम्हारे पास इस नोड का रेफरेंस है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो तुम्हारा डायमीटर ऑफ दिस बाइनरी ट्री है दैट इज पासिंग फ्रॉम दिस नोड। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सपोज ये तुम्हारा रूट नोड है, यहां से दो पॉसिबिलिटीज अराइव हो सकती है। डायमीटर इज पासिंग थ्रू दिस नोड, ओके, एंड डायमीटर इज नॉट पासिंग थ्रू दिस नोड। ओके, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है एंड दैट इज क्लियर, ये बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली चीज है। ठीक है, दैट देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज दैट डायमीटर इज पासिंग थ्रू दिस नोड और नॉट पासिंग थ्रू दिस नोड। लेट्स से मैंने बोला कि डायमीटर इस नोड से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये नोड उस डायमीटर में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। देन डायमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ है ना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स। तो आई से सपोज ये तुम्हारा रूट नोड है, ठीक है, एंड ये तुम्हारा पूरा पूरा डायमीटर d है। ओके, यू विल से दैट इफ रूट इज अकरिंग बिटवीन द टू नोड्स विच आर गिविंग यू डायमीटर, देन ऑब्वियसली जो रूट से इसकी डिस्टेंस होगी इस नोड की, ये भी मैक्सिमम होगी। ओके, एंड रूट से जो ये डिस्टेंस होगी ये भी मैक्सिमम होगी। इट इज ऑब्वियस। आफ्टर दैट ओनली योर डायमीटर, टोटल लेंथ डायमीटर d विल बी मैक्सिमम। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता दैट तुम मैक्सिमम की जगह ये जो रूट है इससे कोई दूसरी डिस्टेंस ले लो, कोई नियरेस्ट नोड की, एंड देन यू विल से दैट टोटल डिस्टेंस विल बी माय डायमीटर ऑफ ट्री। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो रूट से लेफ्ट में भी उसकी जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी एंड रूट से जो राइट में डिस्टेंस होगी वो भी मैक्सिमम होगी। ओके, सो इन दिस वे यू कैन से if diameter of binary tree is passing via root, then उसके जो लेफ्ट में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम नोड की डिस्टेंस, एंड जो राइट में डिस्टेंस होगी वो भी होगी मैक्सिमम नोड एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, यू कैन राइट इट एट लाइक दिस। नाउ अब एक पॉसिबिलिटी हो गई तुम्हारी ये, और तुमने उसके लिए डिस्टेंस कहीं ना कहीं निकाल ली, दैट इज नोड एट मैक्सिमम डिस्टेंस इन लेफ्ट सब ट्री। ऑब्वियसली दिस इज बाइनरी ट्री, तो इसका एक लेफ्ट सब ट्री होगा एंड इसका एक राइट सब ट्री होगा। तो नोड एट मैक्सिमम डिस्टेंस इन लेफ्ट सब ट्री एंड नोड एट मैक्सिमम डिस्टेंस इन राइट सब ट्री। ओके, फाइन। तो फर्स्ट केस की अगर मैं डायमीटर लिखूं, पॉसिबल डायमीटर, वो कितना हो जाएगा, नोड एट मैक्स डिस्टेंस इन लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री। नाउ तुम्हें ये वाला केस कंसीडर करना है, व्हेन डायमीटर इज नॉट पासिंग थ्रू रूट। ओके, इन दैट केस जो तुम्हारा डायमीटर है वो या तो लेफ्ट सब ट्री में आ रहा होगा पूरा का पूरा, या राइट सब ट्री में आ रहा होगा। रूट से पास नहीं हो रहा, इट मीन्स कि जो डायमीटर की लेंथ है वो ऐसे तो आ ही नहीं सकती। ओके, एंड ऐसे नहीं आ सकती तो इधर वो कुछ ऐसे आ रही होगी, डायमीटर कुछ ऐसे बन रहा होगा, या फिर कहीं लेफ्ट सब ट्री में कुछ ऐसा ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो इन दैट केस तुम क्या कह सकते हो कि इस केस के भी दो केस बन जाएंगे। दैट इज, अगर तुम्हें इस केस की वैल्यू चाहिए तो तुम बोलोगे मैक्स ऑफ डायमीटर ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड डायमीटर ऑफ राइट सब ट्री। क्या मैं ये कह सकता हूं सिंपली, मैं रिकर्जन की कॉल्स बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो अगर मेरा रूट से पास नहीं हो रहा तो तुम क्या बोलोगे कि लेफ्ट सब ट्री का जो मैक्सिमम डायमीटर यू कैन गेट एंड राइट सब ट्री का जो मैक्सिमम डायमीटर यू कैन गेट, योर आंसर फॉर दिस केस विल बी मैक्सिमम ऑफ बोथ दीज वैल्यूज, जब तुम्हारा वैल्यू जो रूट से पास नहीं हो रहा डायमीटर। ओके, सो दीज आर सम केसेस जिसकी हेल्प से तुम डायमीटर निकाल सकते हो। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लास्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, दैट इज
हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट नोड एट मैक्सिमम डिस्टेंस इन लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ओके, तो अगर तुमने थोड़ा सा भी मतलब पहले बाइनरी ट्री पढ़ रखा होगा तो यू विल गेट टू नो दैट दिस थिंग इज योर हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, सपोज मैं अगर बोलूं कि मुझे हाइट ऑफ बाइनरी ट्री बतानी है तो तुम क्या बोलोगे, इस पूरे ट्री की हाइट बतानी है तो तुम बोलोगे रूट से जो भी नोड मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस बाइनरी ट्री। ओके, दिस इज द सेम केस एज दिस वन, नोड एट मैक्सिमम डिस्टेंस एट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ओके, तो मैं बोलूंगा कि लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है दैट इज 2 and 3, ये राइट का ये लेफ्ट का, ठीक है। इस रूट से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे नोड होगा वही मुझे डिस्टेंस चाहिए एग्जैक्टली एंड उस डिस्टेंस के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ओके फाइन, सो इन दिस वे in this one question that is diameter of binary tree we are going to see both these things, that is height of binary tree and diameter of binary tree. I hope मैंने diameter of binary tree के सारे cases clear कर दिए हैं. Now we simply have to write recursion function and let's just go to the Newton School IDE and let's just see. This is your structure of node of a tree node for your binary tree. ठीक है, जिसमें कुछ values होंगी, that will be first will be value जिसमें ऑब्वियसली डेटा ऑफ नोड स्टोर होगा, सेकेंड विल बी पॉइंटेड टू द लेफ्ट सब ट्री, थर्ड विल बी पॉइंटेड टू द राइट सब ट्री एंड आफ्टर दैट ये तुम्हारे कुछ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, लाइक ट्रू नोड, उसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो देयर यू विल इनिशिएट अ नोड विद वैल्यू 0, लेफ्ट पॉइंटर नल, राइट पॉइंटर नल. If you will pass value x inside this tree node as an argument, then value of that node will be x, left pointer will be null and right pointer will also be null. Okay, after that third thing will be, if you will pass a value x and two pointers, that is left and right, then it is obvious that value of the node will be x and left and right pointer will be having addresses of left and right subtree. Okay, so अब इसके बाद what we have to do is, अब इसके बाद हमें सिंपली अपने रिकर्जन कोड देखना है. तो फर्स्ट फंक्शन आई विल बी मेकिंग इज फॉर हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, और वो मैं कैसे बनाऊंगा, सपोज आई एम एट द रूट ऑफ सम बाइनरी ट्री, ठीक है, ये मेरा रूट था. अब मुझे सिंपली क्या चेक करना है, एक रिकर्जन फंक्शन कॉल करना है, और कब तक करते जाना है, जब तक मुझे उसके नीचे कोई भी नोड मिल रहा है. ओके, और जैसे ही वो नल हो गया वहां से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा वो फंक्शन. ठीक है, सिंपल सी चीज है. देखना यहाँ पे, ये हाइट ऑफ सम बाइनरी ट्री है, यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस है रूट का. आई विल सिंपली से दैट इफ रूट नल हो गया मेरा देन रिटर्न 0, अदरवाइज यू विल रिटर्न फॉर रिटर्निंग रूट हाइट ऑफ सम बाइनरी ट्री रूटेड एट दिस रूट. तुम क्या सिंपली करोगे, ये रूट है सपोज, ठीक है, तो व्हाट यू विल सिंपली डू कि मुझे अगर इस बाइनरी ट्री की टोटल हाइट चाहिए, व्हाट आई विल सिंपली डू इज मैं रिकर्जन कॉल करूंगा मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ दीज टू सब ट्रीज प्लस वन फॉर दिस एज सिंपली. ओके, सो दिस इज द केस. आई विल सिंपली कॉल द रिकर्जन फंक्शन मैक्स ऑफ हाइट ऑफ रूट लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ रूट राइट, दैट इज राइट सब ट्री, एंड प्लस वन फॉर connection between root and left subtree or right subtree. Okay, so this is the case. Now I will simply come to diameter of binary tree where I am having a reference of root node again. फिर अगेन मेरा एक बेस केस आएगा, दैट इज अगर मुझे रूट ही नल मिला है अपने डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री में, देन सिंपली डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री विल बी 0. अदरवाइज मैंने आप लोगों को 3 केसेस बताए थे टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री. दैट फर्स्टली मैंने 2 केसेस जनरेट किए थे, दैट इज इफ डायमीटर इज पासिंग थ्रू रूट, ओके, एंड सेकेंड केस वॉज इफ डायमीटर वॉज नॉट पासिंग थ्रू रूट. फिर उसके 2 केस अराइज किए थे, maximum diameter will be in left subtree or maximum diameter will be in right subtree. Okay, so you have to write these 3 cases and you will simply take maximum of all these 3 values. So अब इन these 3 values का maximum कैसे लोगे, simply check here, maximum of 3 values I have to take. ठीक है, so height of left subtree plus height of right subtree. This is the case when diameter is not passing when diameter is passing through the root. Okay, अगर diameter root से पास हो रहा है तो height of left subtree and height of right subtree, तो मुझे क्या दे देगा, when diameter is passing through the root. Other 2 cases will be when diameter is not passing through the root.
सो मुझे सिंपली क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ लेफ्ट सब ट्री will give me maximum distance between any two nodes in the left subtree, and diameter of right subtree will give me maximum distance between any two nodes in the right subtree. Okay, तो यहाँ पे you will see that मैंने arguments change कर दिए and you can see it easily now. Okay, so you will see that here that there are the three cases when diameter is passing through the root, when diameter is on left subtree, and when diameter is on right subtree, and I have to take maximum of all these three cases. Okay, so I hope all the things is clear now till now, and if you still have any doubt, you can ask me in comment section. I will explain you again in brief. If you haven't checked Newton School Code Kitchen YouTube channel, just go and check this YouTube channel and subscribe and like this video. And if you haven't checked Newton School Launchpad Initiative and Pay After Placement program, you can see also that full stack development course applications for October batch is open right now. Just go and enroll in this if you want to get placed in any of these companies, and if you want to start learning for free, just go and start learning for free via just sign up or login, and you have different courses. Just enroll in them and get certificates after completion. Thank you guys for watching this video. Thank you guys.